Question number 15. Division of rupees 324 between x and y is in the ratio 11:7. So here we have to distribute 324 between x and y in the ratio of 11:7. X and y would get rupees. So then what amount received by x and y? तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शंस यूज करेंगे. तो वी हैव फोर ऑप्शंस. फर्स्ट 204 120, B 200 124, C 100 144 and D none of these. तो ट्रिक वही जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में लिया था. जो आपके पास पेयर मिला है उनको करस्पॉन्डिंगली 11 और 7 से डिवाइड करेंगे. इफ दीज टू आर सेम and their sum is 324, then answer is correct. But 204 divided by 11 and 120 upon 7, these two are not same. So it means A is not answer. Next, 200 upon 11 is not equal to 124 upon 7. Therefore, B is again not an answer. C, 100 upon 11 and 144 upon 7 is again not equal. So therefore, C is also not an answer. So that means neither A nor B nor C is the correct answer. So therefore D, none of these is the correct answer. तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 16. आनंद अर्न रुपीज 18 7 hours. अब आनंद अर्न रुपीज 18 7 hours. तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट. प्रमोद अर्न रुपीज 19 12 hours. The ratio of their earning is. अब यहाँ पर दो अर्निंग मालूम है. एक का अर्निंग है 7 hours में, तो एक का अर्निंग है हमारे पास 12 hours में. तो ऑब्वियसली द टाइम्स आर नॉट सेम. तो देयरफॉर वी कैन नॉट फाइंड रेशियोज डायरेक्टली फॉर अर्निंग. तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वी कन्वर्ट अर्निंग पर आवर एंड देन वी फाइंड द रेशियो. तो आनंद अर्निंग पर आवर 80 रुपीज इन 7 hours. तो पर आवर अर्निंग कितना हो गया? 80 upon 7. तो हमने क्या किया? अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स. प्रमोद पर आवर अर्निंग इज 90 upon 12 एंड नाउ देयर रेशियो 80 upon 7 डिवाइड बाय 90 upon 12. तो आपको मालूम है 7 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 12 ऊपर क्रॉस हो जाएगा. तो दैट मींस वी हैव 80 into 12 डिवाइड बाय 90 into 7. आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. Then we have 32 upon 21. Further cancellation कर लेना. 0 से 0 कट हो गया. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 8 जा 32 and 3 7 जा 21. So answer is 32 upon 21. Further cancellation is not possible. Therefore required ratio is 32:21. So it is question number 16. Now question number 17. The ratio of two number is 7:10. Again, the ratio of two number is 7:10 and their difference is 105. The numbers are. Then what is the correct numbers? So again we use options. So we have first option 200 and 305. So we divide 200 by 7 and 305 by 10. But these two are not same. Again 135 290. 135 divided by 7, 90 divided by 10. Again these two are not same. C. 245 divided by 7 and 350 divided by 10. These two are same and it is equal to 35. तो दोनों सेम आ गया. Again, their difference. अगर हम 350 में से 245 माइनस करते हैं, it is 105. तो it means जो सेकंड कंडीशन गिवन है वो भी सेटिस्फाइड हो रहा है. तो that means पार्ट नंबर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी. Problem number 18. P, Q and R are the three cities. The ratio of average temperature between P and Q is 11:12 and that between P and R is 9:8. The ratio between the average temperature of Q and R is. So here we have given three cities P, Q and R and we have two ratios for average temperatures. One between P and Q and another is P and R. And here we have to find the ratio of average temperature between Q and R. So now given P is to Q is equal to 11:12, P is to R is equal to 9:8. अब अगर आप देखें in these two terms P is common, तो
आप देख सकते हैं P कॉमन है, तो ट्रिक क्या है कि आपको P के करस्पॉन्डिंग जो नंबर मिला है दोनों में वो सेम करना होगा। क्या करना हमने, P का जो नंबर है दोनों ही रेशियोज में उसको सेम करना है। तो बहुत सिंपल ट्रिक है कि अपोजिट मल्टीप्लीकेशन कर लिया जाए। सेकेंड रेशियो में P क्या है 9, तो हमने फर्स्ट को 9 से मल्टीप्लाई किया, और फर्स्ट रेशियो में P किसके लिए वैल्यू क्या है 11, तो देयरफॉर सेकंड इज मल्टीप्लाइड बाय 11। तो अगर आप देखें तो P is to Q becomes 99 is to 108 and P is to R becomes 99 is to 88. Now the value for P is same in these two, so therefore we write continued ratio. Continued ratio क्या लिख रहे हैं, PQR. तो P is to Q is to R, which is 99 is to 108 is to 88. Here we have to find the ratio between the average temperature between cities Q and R. So therefore we write Q upon R is equal to, corresponding numbers are 108 divided by 88. Now further cancellation, 4 से आप cancel कर देंगे, then we have 27 upon 22. Further cancellation is not to be possible. Therefore, the average ratio of temperatures between Q and R is 27 is to 22. So therefore, the ratio of average temperatures between the cities Q and R is 27 is to 22. So it is question number 18 and very important problem. Question number 19. If x is to y is 3 is to 4, the value of x square y plus xy square is to x cube plus y cube is. अब आपके पास x is to y मालूम है, यानी कि x के करस्पॉन्डिंग हम 3 और y के करस्पॉन्डिंग 4 रिप्लेस करेंगे, तो देयरफॉर x square y plus xy square upon x cube plus y cube, we replace x by 3 and y by 4, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर ले, 3 स्क्वायर इज 9, 9 4 जा 36, 4 स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 3 क्यूब 27 and 4 cube 64. Now after adding we have 84 upon 91. अब 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 12 जा 84 and 7 13 जा 91, तो आंसर इज 12 upon 13. तो therefore required ratio is 12 is to 13. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19. अब जरा ध्यान देना, कैलकुलेशन है थोड़ी. If P is to Q is the subduplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square. So here we have given P is to Q is the subduplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square, then x square is. Now आपको मालूम है subduplicate ratio. If we have to write duplicate ratio or subduplicate ratio of A is to B, then it is root of A is to root of B. तो अगर मुझे A is to B का subduplicate ratio लिखना है तो आपको मालूम है it is root of A is to root of B. तो now we can write P upon Q is equal to root of P minus x square upon root of Q minus x square, क्योंकि P upon Q सब डुप्लीकेट रेशियो है किसका, P माइनस एक्स स्क्वायर और Q माइनस एक्स स्क्वायर का. अब सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपको मालूम है इधर P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर हो जाएगा, रूट्स आर कैंसल्ड, तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर इज इक्वल टू P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाई, आप इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया मेरे पास टर्म. मल्टीप्लाई ओपन कर दें, P स्क्वायर Q माइनस P स्क्वायर एक्स स्क्वायर, Q स्क्वायर P माइनस Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अच्छा, आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का सारा टर्म एक साइड शिफ्ट हो जाए और बाकी सारे टर्म्स अदर साइड शिफ्ट कर ले जाए. तो आप देख सकते हैं Q स्क्वायर P जो कि कहाँ है, राइट हैंड साइड, उसको शिफ्ट किया है हमने लेफ्ट हैंड साइड, मार्क किया हमने उसको साइन के साथ, तो ध्यान देंगे. एंड P square x square which is in the left hand side is shifted to the right hand side and marked by arrow. अब आपके पास ये पूरा सिस्टम इस तरह से आ गया है. अगर आप देखें यहाँ पे पहला जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें से P और Q कॉमन निकल रहा है. P स्क्वायर में से एक P निकाल देंगे, P यहाँ भी है, Q स्क्वायर में से एक Q आ जाएगा बाहर और एक Q यहाँ पर है, तो we take PQ common, so therefore PQ into P minus Q or is equal to,
here x square is common, therefore we have p square minus q square, but we have to find x square, so that means p square minus x square is shifted to denominator of the other side. तो हमने इसको डिनोमिनेटर यानी कि डिवीजन में शिफ्ट किया, लेकिन आपको मालूम है इंपॉर्टेंट करके हमने नोट किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b, तो देयरफॉर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज रिटन एज p माइनस q अपॉन p प्लस q, p माइनस q कैंसल, तो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू pq अपॉन p प्लस q, तो वी हैव x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमारे पास x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है p अपॉन q अपॉन p प्लस q. Now, question number 21. If 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p, then तो हमको कंडीशन फाइंड आउट करना है कि हमारे पास क्या कंडीशन आना चाहिए. तो here we have to find the different conditions जो यहाँ पर जनरेट हो सकती हैं. तो अब जरा देखें सॉल्यूशन के लिए. Here given 2s is to 3t is the duplicate ratio of duplicate. अगर आपको a is to b का डुप्लीकेट रेशियो लिखना है तो इट इज a स्क्वायर is to b स्क्वायर. तो अगर हम इसे यहां पर लिखें तो गिवन 2s अपॉन 3t इज इक्वल टू 2s माइनस p द होल स्क्वायर अपॉन 3t माइनस p द होल स्क्वायर. अब ये तो हमने यहां पर नोट किया. नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देयरफॉर 2s के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3t माइनस p द होल स्क्वायर एंड 3t 2s माइनस p द होल स्क्वायर. नाउ वी ओपन a माइनस b द होल स्क्वायर, और आप सबको मालूम है a माइनस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो वी यूज a माइनस b द होल स्क्वायर left hand side as well as in right hand side. So therefore 2s 3t the square 9t square minus 2ab, so 3 2 जा 6 tp और plus p square. Next 3t, अब यहां पर होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो इट इज 4s स्क्वायर माइनस 4sp and then plus p square. Now we multiply here by 2s, whole equation or whole terms are multiplied by 2s, so therefore 18st square minus 2 6 12 stp plus 2sp square is equal to 12ts square minus 12tsp plus 3tp स्क्वायर. तो ये हमारे पास इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ओपन हो गया. आप देख सकते हैं दो टर्म कॉमन है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज इन राइट हैंड साइड. कैंसल दीज टू 12stp. नाउ रिमेनिंग टर्म्स आर 18st स्क्वायर प्लस 2sp स्क्वायर इज इक्वल टू 12ts स्क्वायर प्लस 3tp स्क्वायर. तो हमने इनको कलेक्ट करना है. किस तरह से? आप p स्क्वायर के टर्म वन साइड शिफ्ट कर दें और बाकी को अदर, तो देयरफॉर 2sp स्क्वायर माइनस 3tp स्क्वायर इज इक्वल टू 12ts स्क्वायर माइनस 18st स्क्वायर. Here p square is common. If we take p square common, then 2s minus 3t. Next, here 6 2 ja 12, 6 3 ja 18, 6 is common. t square, t is common. s square s is common. तो क्या रह गया 2s और यहां से रह गया 3t. Again, अगर हम लोग यहाँ पे नोट करें तो here p square is equal to 6ts into 2s minus 3t और होल डिवाइड बाय 2s minus 3t. कैंसल. तो देयरफॉर
P square is equal to 6ST or TS. तो here we have condition P square is equal to, और ये क्या आ रहा है हमारे पास 6 into ST. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21. Question number 22. If P is to Q 2 is to 3 and X is to Y 4 is to 5, then value of 5px plus 3qy is to 10px plus 4qy is. तो हमने पहले भी इस तरह का सम सॉल्व किया है. आप करेंगे क्या, P के करस्पॉन्डिंग 2 रिप्लेस करेंगे और Q के करस्पॉन्डिंग 3, X का करस्पॉन्डिंग 4 और Y के लिए 5 रिप्लेस करेंगे. तो therefore solution is written as we have to find the ratio of 5px plus 3qy is to 10px plus 4qy. So then we write these terms in numerator and denominator form. Now we replace p by 2, x by 4. Next 3 as it is, q by 3 and y by 5. And same for denominator. आपके पास आ जाएगा 40 plus 45, 80 plus 60, 85 upon 140. अब 5 से कट कर देंगे, ऊपर 17, नीचे 28. फर्दर कैंसिलेशन इज नॉट टू बी पॉसिबल, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 17:28. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22. नेक्स्ट 23. द नंबर विच व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो 19:31 रिड्यूसिंग इट टू 1:4. तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा नंबर होगा जिसको 19:31 के हर एक टर्म में से माइनस करें तो हमारा रेशियो क्या रह जाएगा 1:4. तो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, तो हमें बहुत ज्यादा सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं. तो सपोज दैट ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें क्या दिया है 15. तो देखिए नीचे हमने क्या लिखा 19 minus 15, 31 minus 15. हमने दोनों में से माइनस किया 15. देन वी हैव 4/16. 4 से 16 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स. सो इट इज 1/4. तो देयरफॉर रेशियो इज 1:4. और यही तो हमारा क्वेश्चन है कि रेशियो कितना होना चाहिए 1:4. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. तो ये था हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23. तो 23 डायरेक्टली ऑप्शंस को यूज करके आप लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. Question number 24. Daily earnings of 2 persons are in the ratio 4:5 and their daily expenses are in the ratio 7:9. तो दो डिफरेंट पर्सन है, उनका डेली अर्निंग का रेशियो मालूम है 4:5, देयर एक्सपेंसेस का रेशियो मालूम है 7:9. इफ ईच सेव ₹50 पर डे, देयर डेली अर्निंग्स इन रुपीज आर. और हमको ये बताया गया है कि ये जो दो लोग हैं वो हर दिन 50 रुपए या 50 रुपीज का सेविंग करते हैं, तो उनका पर डे का अर्निंग क्या होगा. तो यहाँ भी हम लोग ऑप्शंस को यूज करेंगे. ऑप्शन ए जो गिवन है 40 और 50. अंडरस्टूड है कि अगर कोई 40 रुपीज का पर डे का अर्निंग करता होगा तो 50 रुपए का सेविंग नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन ए को चेक करना बेकार है. ऑप्शन बी अगेन चेक करना बेकार है, क्योंकि अगर यहाँ भी देखा जाए एक वैल्यू 40 गिवन है, तो अगर 40 रुपीज पर डे का अर्निंग है तो आप समझ सकते हैं वो 50 रुपए का सेविंग तो नहीं कर सकता है. इसको भी हमने चेक नहीं किया. सी 400 एंड 500. अब मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा. रेशियो ऑफ अर्निंग, एक्चुअली जो ऑप्शन में गिवन है वो अर्निंग है, तो रेशियो ऑफ अर्निंग का मतलब हुआ 400/500. ऑब्वियसली जीरो से जीरो कैंसिल, 4/5 रह जाएगा, यानी कि रेशियो कितना आया 4:5. और हमको यहाँ पर क्वेश्चन में भी क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग इज 4:5, यानी कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड. अब सेकंड, अगर ये उनका अर्निंग है और उन्होंने 50 रुपए का सेविंग किया था, तो उनका एक्सपेंस मालूम चल जाएगा. 400 माइनस 50, ये हुआ फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंस. सेकंड पर्सन का एक्सपेंस क्या आएगा 500 माइनस 50. तो क्लियर है, हमने क्या कहा, एक्सपेंस अगर देखना है तो आप सेविंग को माइनस कर देंगे अर्निंग में से. तो रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस इट इज रिटन एज 400 माइनस 50 डिवाइड बाय 500 माइनस 50, which is
350 डिवाइड बाय 450। अब आप इसको अगर 0 से 0 कट कर दें और 5 से कट करें तो 7/9, तो दैट मीन्स रेशियो इज 7:9। और आप देख सकते हैं हमको सेविंग का रेशियो कितना मालूम था, 7:9। तो दो कंडीशन गिवन थी क्वेश्चन में और दोनों इसने ऑप्शन सी ने वेरीफाई किया है, तो दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। तो इट इज क्वेश्चन नंबर 24 एंड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे पास एग्जाम्स में हो सकता है। 25, द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन इज 7:8। अब दो अलग अलग ट्रेन है, उनका स्पीड्स का रेशियो मालूम है, क्या मालूम है, 7:8। If the second train runs 400 किलोमीटर in 5 hours, हमको बताया गया कि जो सेकंड ट्रेन है वो 400 किलोमीटर रन कर रहा है 5 आवर्स में। द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज, तो हमको बताना है कि फर्स्ट ट्रेन का स्पीड क्या होगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, बट फॉर द सेकंड ट्रेन वी हैव कंडीशन, सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स। तो हमने यहाँ पर जनरल फिजिक्स में आपने ये फॉर्मूलास पढ़ा है, वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देयरफॉर स्पीड इज इक्वल, स्पीड फॉर सेकंड ट्रेन 400 डिस्टेंस मूव किया था, 5 आवर्स में मूव किया था, तो 400/5 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमको यहाँ पर इनडायरेक्टली यहाँ पर स्पीड दिया था जो हमने फाइंड आउट कर लिया 80 किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड फॉर फर्स्ट ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। हमने एक असम्पशन लिया कि जो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर है। तो हमको इनका रेशियो मालूम था 7:8, तो यानी कि x फर्स्ट ट्रेन का स्पीड 80 डिवाइड में लिया हमने, यानी कि सेकंड ट्रेन का स्पीड, बट इट इज इक्वल टू 7/8 जो गिवन रेशियो था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x इक्वल टू 7/8 इंटू 80 विच इज इक्वल टू 70। 8 से 80 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, 10 7 जा 70। तो देयरफॉर स्पीड फॉर फर्स्ट ट्रेन इज 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास बेसिक एक्सरसाइज फर्स्ट था फॉर रेशियो। तो मैंने जैसा पहले भी कहा था स्टार्ट करने से पहले कि जितना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको ठीक से बाय हार्ट करें, जैसा व्हाट इज द इनवर्स रेशियो, व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो, व्हाट इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो, what is the sub duplicate ratio, what is the sub triplicate ratio, and how we find compound ratio। तो सारे टर्म्स जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक सिंपल सम्स भी सॉल्व नहीं होंगे। और मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में जो सम आते हैं वो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होता है जो हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े सम्स हमसे नहीं पूछे जाते, तो अपने ट्रिक्स होती हैं और वो ट्रिक्स तभी फॉलो होगा जब आपको सारे के सारे टर्म्स अच्छे से बाय हार्ट रहेंगे। तो इट इज एक्सरसाइज फर्स्ट है। अब सेकंड एक्सरसाइज के लिए हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्या, प्रपोर्शन।